نیشنل پریس کلب اسلام آباد الیکشن 2024 میں صحافیوں نے بھرپور شرکت کی اور اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کا انتظام تسلی بخش رہا۔ سیکیورٹی اہلکار ڈیوٹی پر موجود رہے۔ صحافی سینئر کرائم رپورٹر راجہ وسیم نے اپنا ووٹ آخر میں پول کیا۔ مزید جانیے سردار ظہیر کی اس رپورٹ میں کہ سینئر صحافی کیا کہتے ہیں۔ جی صحافت سر، آج کے الیکشن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ہے کہ جمہوری میلہ ہے جہاں 150 کینڈیڈیٹ ہے اور 2000 ووٹر جو اب تک آ چکے ہیں، ٹوٹل 3500 ووٹ 3000 سے اوپر۔ میرا خیال یہ ہے کہ کیونکہ جس طرح ہمارے ساتھی جرنلسٹ پینل کے پورا سال ایکٹیو رہتے ہیں، وہ پریس فریڈم کا ایشو ہو، وہ جرنلسٹوں کے پرابلم ہوں، وہ ان کے دفتر کے مسائل ہوں، تو میرا ہے لوگ بائی چوائس آتے ہیں، گھروں سے چوائس کر کے آتے ہیں کہ ہمیں جرنلسٹ پینل۔ مخالفت نہیں ہوئی آپ کی جنرل پارٹی اجلاس میں بھی؟ تو لگتا ہے جرنلسٹ پینل ہی ہے۔ الحمدللہ ویسے ہی لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جی، ہمارے ساتھ قائد صحافت افضل بٹ صاحب موجود تھے۔ جرنلسٹ پینل ہی ہے جی دوبارہ پھر۔ اظہر جتوئی صاحب موجود ہیں۔ سر کیا کہیں گے آج کے الیکشن کے حوالے سے؟ جی بڑا اچھے پرامن پولنگ کا سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ ٹرن آؤٹ بھی بڑا اچھا ہے، اور صبح سے ہی اسلام آباد راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے جرنلسٹوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ 7 بجے تک پولنگ جاری ہے، اس کے بعد ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہوگا اور انشاءاللہ جرنلسٹ پینل پھر میدان مارے گا۔ بہت شکریہ۔ فاروق فیصل صاحب ہے جی امیدوار برائے صدر۔ سر کیا کہیں گے آج کے الیکشن کے حوالے سے؟ بہت اچھا جی، بہت اچھا الیکشن ہوا اور سارے ملک کو ایک میسج دیا ہے کہ اس میں پیار محبت سے سب لوگوں نے اپنا رائے کا اظہار بھی کیا ہے، اور ہر کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میری پوزیشن کمزور ہے۔ ہر بندہ آخری ٹائم تک جو ہے نا، جب تک اناؤنس نہیں ہو جائے گا، وہ پر امید ہی رہے گا کہ میں جیت رہا ہوں، اور دوستوں کی محبت بھی سامنے ہے۔ آپ آ جاتے ہیں تو کیا کریں گے صحافیوں کو؟ میرا ماضی دعا ہے، آپ اتنا بڑا پریس کلب اور اتنا بڑا میڈیا ٹاؤن بھی اگر کسی قریب میں رہتا ہو سکتا ہے ان سے زیادہ آگے لے کے۔ جی، ہمارے ساتھ فاروق فیصل صاحب موجود تھے۔ اگر صدر بن گئے تو میڈیا ٹاؤن اور پریس کلب سے بھی زیادہ ان کو آگے لے کے جائیں گے۔ ابھی جنرل پارٹی اجلاس ہوا تھا اس کا پریس کلب کا، اپوزیشن نے کسی قسم کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، کیا وجہ ہے؟ رد عمل وہاں ظاہر ہوتا ہے جس پر جہاں جب ہماری کمیونٹی نے 5 کروڑ روپے کے اخراجات کی منظوری دے دی، اس کو پاس ہوئی نہیں ہوتی۔ 1 کروڑ روپے کا پلان لگا رہے ہیں اور یہاں لوگ ہمارے بھوکے مر رہے ہیں۔ پورے سال میں 28 لاکھ روپے خود سے صحافی کی امداد کی ہے اور 1 کروڑ روپے تین پروجیکٹ لگا رہے ہیں۔ اپنے آپ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ الیکشن جیتیں گے ہاریں گے؟ جی، شکیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن انشاءاللہ جیتیں گے۔ وقار عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جرنلسٹ پینل کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ عباسی صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آج کے الیکشن کو؟ بہت شکریہ جی، میں جرنلسٹ پینل کا فائنانس سیکرٹری کا امیدوار ہوں، اور آج کا جو الیکشن ہے وہ بڑا زبردست ہے، بڑا ایک ڈیموکریٹک وے میں جا رہا ہے۔ ایک چیز پہلی دفعہ دیکھنے میں سامنے آئی ہے، وہ یہ کہ اس دفعہ جو جنرل باڈی کا اجلاس تھا اس میں جو مخالفین تھے انہوں نے بھی جرنلسٹ پینل کی حمایت کی باتیں کی ہیں، کیا وجہ رہی ہے؟ بیسیکلی جو جرنلسٹ اپنی کمیونٹی کے لیے ڈیلیور کرتے ہیں لوگ، اسی لیے انہیں ان کو ریکمنڈ بھی کرتے ہیں اور ان کی جناب تعریف بھی کرتے ہیں، تو یہی وجہ ہے جرنلسٹ پینل کی مقبولیت کی، یہی وجہ ہے کہ وہ ہر بار آپ کو لیڈ سے جیتتا ہوا نظر آتا ہے، اور لوگوں کا بالکل صحافیوں کا جو اس کے اوپر اعتماد ہے اس کی ریزن بھی ہے کہ یہ پینل جو ہے وہ ڈیلیور کرتا ہے۔ آپ خزانے کے امیدوار ہیں، کیا کریں گے صحافیوں کے لیے؟ دیکھیں خزانے کی جہاں تک صورتحال ہے، میں کیونکہ پچھلے 2 سال سے اس باڈی کا حصہ ہوں اور اس سسٹم کو بڑے قریب سے دیکھ بھی رہا ہوں کہ ہمارا اسلام آباد کا جو پریس کلب ہے یہ آزادی صحافت کا مورچہ ہے۔ آپ اگر یہ کہیں کہ یہاں پہ اس کو فنڈز کا سب سے زیادہ ایشو ہوتا ہے، گورنمنٹ کی جانب سے اسے کوئی فنڈز نہیں ملتے، ہم اپنے ریسورسز سے جو بہت ہی کم محدود ریسورسز ہیں ان کے اندر رہ کے ہم اس کلب کو چلا رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس بہت زیادہ وسائل تو نہیں ہے، لیکن ہم بہرحال اپنے طرح کوشش ضرور کر رہے ہیں کہ وسائل کی کمی کو بہرحال اپنے جو اخراجات ہیں ان کو کم کر کے ان کو پورا کیا جائے، اور ہم ریسورسز بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو انشاءاللہ ہماری کمیونٹی ہے اس کی ویلفیئر کے اوپر خرچ ہوں گے۔ بہت ہمارے ساتھ وقار عباسی صاحب تھے۔ یہ ریسورسز جو فائنانس کے ہیں بڑھانے کی کوشش کریں گے اور آنے والے وقت میں صحافیوں کے لیے جو اچھے سے اچھا ہو سکا وہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔ اس دفعہ جو جنرل باڈی کا اجلاس ہوا تھا اس میں اپوزیشن کی طرف سے کوئی اتنی سخت ہارڈ ٹائم نہیں دیا گیا، کیا وجہ رہی؟ جو دل کے کمزور وہی کرو، کمزور اپوزیشن ان کے پاس ایجنڈا نہیں تھا،
اس لیے کوئی ٹائم نہیں دیتے. حالانکہ بے شمار سوالات ہر بندے کی خامیاں بھی ہوتی ہیں, اچھائیاں بھی ہوتی ہیں, برائیاں بھی ہوتی ہیں. خبر نہیں کر سکے کہ ہمارے کسی برائی کی نشاندہی کریں اور ہم اصلاح کے قابل بھی نہیں کہ ہم پہ تنقید کریں اور ہم اپنے تو پہلے رول یہ ہمارے ساتھ سینئر صحافی مشکل صاحب موجود ہے. ان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کمزور تھی, جنہوں نے پہلے بھی کوئی رول ادا نہیں کیا اور اب بھی رول ادا نہیں کر سکے. حالانکہ بہت سے ایسے سوالات ہیں جو انہیں کرنے چاہیے تھے, لیکن ان کی نااہلیت کی وجہ سے وہ سوال بھی وہ نہیں کر سکے. جی ہمارے ساتھ سینئر صحافی میم فرا بیٹھی ہیں. میم کیا کہیں گی آج کے الیکشن کے حوالے سے؟ بہت زبردست آ رہا ہے جی. آپ دیکھ لیں کہ آج لگتا ہے کہ ٹرن آؤٹ بہت زیادہ ہوگا. آپ نے جیسے دیکھا ہوگا, کیمرہ ادھر بھی گھمائے ذرا, کتنا رش ہے یہاں پہ. لیکن ہم نے صبح پہلے ٹائم میں آ کے اپنے پینل کو ووٹ ڈال دیا تھا, تو انشاءاللہ تعالی ہمارے جرنلسٹ پینل کی کامیابی 100% ہے. تو جرنلسٹ پینل اگر جیت گیا تو اب کی بار صحافیوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو ہمیشہ فائدہ ہی رہا ہے جی, نقصان تو کبھی نہیں ہوا. بٹ صاحب نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا ہے کہ ہمارا جو عام صحافی جو ہے, عام صحافی سے جسے آپ ورکر صحافی بھی کہتے ہیں, وہاں سے لے کے سینئر تک سب کا خیال رکھتے ہیں اور مل جل کے چلتے ہیں. اور ان کی پالیسیز میرا خیال ہے بہت اچھی ہیں, خیال نہیں بلکہ یقیناً. اور انشاءاللہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ میڈیا ٹاؤن انہوں نے بنایا, میڈیا ٹاؤن فیز 2 بننے جا رہا ہے, تو یہ کتنی بڑی بات ہے. صحافیوں کے مالی حالات بڑے کمزور ہیں, وہ فائنینشلی ان کے پاس اس طرح کے وسائل نہیں ہے. مکان تو دور کی بات ہے, کبھی اس طرف بھی کوئی توجہ ہوگی؟ جی اس کے لیے تو دیکھیں آپ کو پتا ہوگا کہ جیسے پچھلے سال بھی اور اس سے پچھلے سال بھی رمضان المبارک میں بڑے باعزت طریقے سے ایسے صحافیوں کی نشاندہی کی گئی تھی, اور کسی کو کان خبر نہیں ہوئی کہ کس کے لیے کیا ہیلپ ہوئی ہے, کس کے لیے. ایک سال بعد ایک صحافی دیکھتا رہے. نہیں ایک صحافی نہیں, یا تقریباً یہاں پہ جتنے بھی ایسے صحافی تھے اس کے لیے واٹس ایپ یہ جو جرنلسٹ پینل کے ہمارے قائدین ہیں دیگر, وہ انشاءاللہ ایک نیا لائے عمل اپنائیں گے, جس کی وجہ سے ایسے صحافی جو معاشی تنگی کا شکار ہیں, جس کا پہلے مدد کرتے رہے ابھی بھی وہ کریں گے. ان کی نواز رشید صاحب, آپ آج الیکشن ہو رہا ہے, پہلے تو ہمیں بتائیں کہ آج کے الیکشن والے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں الیکشن تو لڑ رہے ہیں. سن 2002 میں ایک بار یہاں پر کھو ہوا تھا, یہاں پر ایسی قوتوں نے مداخلت کی جن کے پاس اقتدار تھا, تو جن لوگوں کے ہاتھ میں کعبہ ہے, اس کے بعد تو جو ووٹر لسٹ بنتی رہی ہے اس کے بعد الیکشن ہم نہیں جیت سکے, اور شاید اب بھی ہم شاید جیت سکیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ نیٹ اینڈ کلین ووٹر لسٹ نہیں ہے. جب تک یہ ووٹر لسٹ سیکورٹائز پراپرلی تھرڈ پارٹی سے نہیں ہوگی, اس تک نتائج کا ہمیشہ جھکاؤ ایک طرف ہی رہے گا. لیکن بہرحال اس بار اپوزیشن کے تینوں گروپ حصہ لے رہے ہیں, اور دوسری طرف اگر واٹس ایپ کا گروپ حصہ لے رہا ہے, تو الیکشن ابھی تک بہت اچھے ماحول میں ہو رہے ہیں, فری اینڈ فیئر ماحول میں. اور ہونا بھی ایسا چاہیے کہ ہمیں ایک دوسرے کو دشمنی نہیں ہے. الیکشن ہو جائے, ہارنے والا جیتنے والے کو مبارکباد دے اور جیتنے والا ہارنے والے کو اپنے ساتھ لے کر چلے. پر ون مین رول یہاں پر کوئی قبضہ ایک قسم کا گروپ کا بنانے کی کوشش کی گئی, تو پھر یہ ماحول خراب ہوگا. میں کہتا ہوں کہ رولنگ پارٹی اور اپوزیشن کو تمام کمیٹیوں میں برابر کی نمائندگی دی جائے, تاکہ یہ سارا پریس کلب کا جو ہے نظام وہ ٹھیک طریقے سے چلے. یعنی کینٹین کی مسئلہ ہے, انتظامات کے معاملات ہیں, ٹینڈر کو ہوتے ہیں, چیزیں سیل اینڈ پرچیز ہوتی ہیں, ان میں اپوزیشن کی نمائندگی ہو تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہے. سر کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن اتنے عرصے سے اپوزیشن کر رہی ہے, تو کیا وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی کہ وہ جیت نہیں پا رہی؟ ڈیلیور کیا کرے جب 1000 ووٹ اپنے گھر سے وہ لے کر چلے. میں یہ کہتا ہوں نا کہ تھرڈ پارٹی
तीन बुकरा को बुला लें जिनको लोग एतवार करते हो, उन्हें कहें ये सबका एक बार आप ऑपरेशन कर दें और इनको सबको दे। आपको पता लगेगा कि जिस अखबार में 2 आदमी काम करते हैं उसमें पता लगेगा कि 30 आदमियों की लिस्ट है वहाँ। सर जर्नलिस्ट पैनल क्या अच्छा काम कर रही है कि अपोजिशन की तरफ से कोई हार्ड टाइम नहीं दिया गया? हार्ड टाइम दे रहे हैं हम, ये तो उनके मुकाबले में तो उनको तस्वर भी नहीं था कि फारूक फैसल आ जाएगा, उन्हीं का आदमी था, उनके साथ मिल गया था ना, जब हम इसके साथ खड़े हैं। हमारे इस ग्रुप में आप ये बात ये देखें, हम इनका मुकाबला कर रहे हैं उस लिस्ट पर जो इनकी बनाई हुई लिस्ट है। ये 16 साल मुझसे शिकस्त खाते रहे, लेकिन उसमें अपोजिशन भी जीती रही है। ये नहीं हुआ कि वन मैन कोई नहीं होता था काम, 60-40 की रेशो से होता रहे। अब ये है कि जब एक तरफा लिस्ट ही उनकी इतनी बड़ी हो, जिसमें मुझे ये बताएं कि शहर में 33 जर्नलिस्ट हैं, कहाँ से जर्नलिस्ट ढूंढ लाते हैं। मैं आपसे मुझसे सच्ची बातें ना करवाएं, यहाँ मैं आपको पूरे रावलपिंडी के गिरदोनवा और आज़ाद कश्मीर के लोगों को बताऊंगा जिनको यहाँ मेंबरशिप दी हुई है। कब खुदा खोपी होनी चाहिए, ये सारा प्लाटों के लिए लोग कर रहे हैं, प्लाट मिल जाएंगे। मैं कहता हूँ जेन्युइन आदमियों को आग नहीं मारना चाहिए। सर कह रहे हैं जर्नलिस्ट ये भी कह रहे हैं कि कोई पीडीएम टाइप की यहाँ पे जर्नलिज्म भी बन रही है जो प्रेस क्लब में, तो क्या इसी तरह का कोई प्री सेटअप काम हो रहा है? कोई पीडीएम नहीं है, हमारे 3 अलग-अलग ग्रुप ने हिस्सा ले रहे हैं। हर आदमी की ख्वाहिश है कि मैं प्रेसिडेंट बनूं। ये प्रेसिडेंट का मनसब जो है ना अब बड़ा पुरकशिश हो गया है, इसलिए हर आदमी की ख्वाहिश और कोशिश होती है कि मैं आऊँ। मैं 16 साल रहा, 16 साल ये मुसलसल शिकस्त खाते रहे। ये इसलिए हम हार रहे हैं कि वोटर लिस्ट पे हमारा कंट्रोल नहीं है। आप जिसकी वोट कटे तो वो हमारे से आप गले पड़ता है, वो कहता है जी मेरी वोट को कटवा रहे हो। तो जब वोट नहीं होगी, जब जो लोग चिपट के बढ़ गए जैसे वोटर लिस्ट में, वो निकलने के लिए नाम नहीं रहते। वो ये समझते हैं कि शायद कोई एक नया मीडिया टाउन बनेगा तो उसमें उनको भी प्लाट मिल जाएंगे। जो लोग यूट्यूब पे भी होते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं, चीफ जस्टिस को गालियां देते हैं, आर्मी चीफ के बारे में बकवास करते हैं, ये काम ना, उनको अगर वो पकड़ दकड़ होती है वो आज़ादी साबित नहीं है। आज़ादी साबित ये है कि आप जो अपने दिल से बात करें मज़हब अंदाज में आप तनकीद करें, और यकीनन जब आप तनकीद करेंगे मज़हब अंदाज में, कोई आपकी हाथ पर हाथ नहीं डाल सकेगा। आजकल के जो जर्नलिस्ट हैं वो किसी एक सियासी जमात की तर्जुमानी क्यों करते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, अगर पॉपुलर जमात हो ना, यूट्यूबर तो उधर जाते हैं कि जनाब उसके पैसे बढ़ेंगे उसके। सर तर्जुमानी नहीं करनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि आप मेरे बारे में लोगों को राय है कि मेरा झुकाव है मुस्लिम लीग नून की तरफ, लेकिन मेरे कॉलम पढ़ें तो आपको उसमें वो चीज़ भी मिलेगी जो मैंने तनकीद की हुई। राय आपकी किसी का हक में हो सकती है। आप किसी को गाली दें और गाली देने के बाद आप कहेंगे जब पकड़ दकड़ क्यों हो गई है। और कोई आदमी मेरे समेत मुझे इमरान खान की पॉलिसियां पसंद नहीं, हालांकि 1993 से मेरी से दोस्त है, लेकिन मैं हमेशा उसकी इज्जत के साथ एहतराम के साथ जिक्र करता हूँ और मैं उससे मिलता भी हूँ। मैंने तो हमेशा उससे कहा कि आप सुलह सफाई लोगों के साथ रखें, नहीं की उन्होंने, तो आज वहाँ तक पहुँचे। किसी आदमी को भी किसी के तनकीद से नहीं रोकना चाहिए, लेकिन कोई मजहब अंदाज में जर्नलिस्ट को सीखना ये चाहिए। पढ़े, मैं कहता हूँ किताबें पढ़े जी, जर्नलिस्ट की लिखी हुई किताबें पढ़े, बायोग्राफी पढ़े, फिर उसके इल्म में इजाफा होगा, फिर लिखेगा तो उसको पता भी होगा। ये कोई नहीं है जहाँ कहीं को खड़ा रहेगा उसके मुंह में माइक कर दे और जो कुछ उसने कहा उसको टेलीकास्ट भी कर दे, ये भी नहीं होना चाहिए। जी हमारे साथ नवाज रजा साहब मौजूद थे, कह रहे हैं कि नए आने वाले जर्नलिस्ट को दिल लगा के पढ़ना चाहिए, उन्हें मुताला करना चाहिए और तनकीद करें, लेकिन तनकीद करने के बाद ऐसी तनकीद करें कि दूसरा जो बंदा है उसको गालम गलौज बीच में ना हो, और किसी की तर्जुमानी जर्नलिस्ट को नहीं करनी चाहिए, दूसरी बात करनी चाहिए। और ये इलेक्शन जो अभी ये मुसलसल जीता जा रहा है, ये वोट सही तरीके से उनकी स्क्रूटनी नहीं हुई, जिसकी वजह से ये इलेक्शन नहीं जीत पा रहे अपोजिशन। हमारे साथ किसी तारुफ की मोहताज नहीं है मैम शकीला, तो क्या कहेंगे आज के इलेक्शन के हवाले से? जमहूरी अमल है और बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो वोटिंग का अमल जारी है। तमाम जर्नलिस्ट अपना हक राय इस्तेमाल कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जो भी जो है वो सिलेक्शन होगी इंतखाब के बाद जो है वोटिंग के बाद जो है वो जो भी टीम आएगी वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए काम करेगी और हम तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला
जनरल पैनल कामयाब होगा और इंशाल्लाह ताला अपनी क़यादत में इस इलेक्शन में हमारे जो वो कामयाब होगी और अपनी कम्युनिटी की वेलफेयर जर्नलिस्ट पैनल की मुंतखब करना पार्टी कामयाब होगी, और क्योंकि इन्होंने फलाह बहबूद के बहुत से काम किए, जर्नलिस्ट की सोच है ये, और यही पैनल आगे बढ़ेगा। शकीला का ये कहना था। उस्मान भट्ट साहब JNN से आज के इलेक्शन के हवाले से क्या? यार इस पे तो मैं वेरी ऑनेस्ट अगर कहूँ तो बस कुछ दोस्त ऐसे जिनको कभी देखा नहीं है, लेकिन ज्यादा मेजोरिटी जो थी वो फेमिलियर ही है। ठीक है, मशीन के थ्रू आप कम लगाएं, आपका सारा डाटा सामने आ जाए, फिर आप उसको वहाँ से मार्क करते जाए। थोड़ा ट्रेंड चेंज करना चाहिए, कोई लाइनें लगी नहीं है और वो थोड़ा सा अपडेट होना चाहिए था। क्या समझते हैं ये अपडेट नहीं हो रहा, तो ये जो है जो बरसर इक़्तिदार पार्टी है उसकी गलती है या अपोजिशन की गलती? मैं तो कहता हूँ दोनों ने दिलचस्पी नहीं है। दोनों में से ये है कि जो आपके जो लोग एतराज करते हैं कि जी हमारा वोट जो है वो जाली वोट वगैरह डाल के, उसमें भी उसको भी कंट्रोल करने में मदद मिले। थैंक यू। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती तो बेहतर होता, ताकि कोई लोग जो एतराज उठाना शुरू कर देते हैं जी हमारा जो वोट है वो जाली हो गया है या जाली वोट डाले गए हैं, वो नहीं होना चाहिए। सीनियर साफी आबिद अब्बासी साहब मौजूद हैं। आबिद अब्बासी साहब, आज के इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। आज का इलेक्शन रावलपिंडी इस्लामाबाद के जर्नलिस्टों ने अपनी नई क़यादत के इंतखाब के लिए जो है इसके पार्टिसिपेट किया है, और लोग अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो वोट जो समझते हैं कि उनका राइट है और उसी के जरिए वो नई क़यादत का इंतखाब करेंगे। और इस तरह के 4 पैनल्स हमारे सामने है। हमारी पूरी उम्मीद है कि जर्नलिस्ट पैनल जो है वो मेंबरान के वोट के जरिए फिर कामयाब होगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ आबिद अब्बासी साहब मौजूद थे। इनका कहना है कि जर्नलिस्ट पैनल ही विन करेगा। जी हरमीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनसे जानते हैं कि आज के इलेक्शन के हवाले से क्या कहते हैं। जी हरमीत, क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया आपका। और इलेक्शन की गहमा गहमी और बहुत अच्छा लग रहा है कि टर्न आउट जो है साफियों का, हम देख रहे हैं कि काफी दिलचस्पी दिखाई दे रहे हैं, आ रहे हैं। लेकिन हमारा मकसद यहाँ पे इलेक्शन में, मैं बजाते खुद भी खड़ा हूँ, सिर्फ बदलाव चाहिए। बदलाव ये चाहिए कि इस घर पर इसको एक घर बनाना है, साफियों का घर बनाना है। और कम से कम हमारी कोशिश चाहिए कि यहाँ पे आप भी अपनी फैमिली के अंदर आए, हम भी आए, यहाँ पे आप उसी तरह आप महसूस करें कि आप अपने घर दूसरे घर आए। तो एक तो जिस हालात में ये प्रेस क्लब है जहाँ पे प्लाटों पर सियासत होती है, हेल्थ कार्ड पर सियासत होती है, हमारी ना हम प्लाटों की कोई सियासत कर रहे हैं। हाँ, एक चीज है जो साफियों के बुनियादी हुकूक हैं जिससे उनको महरूम रखा गया है नहीं रखा गया है, तो हमारी कोशिश है वो सहूलियात, अपने बुनियादी सहूलियात अपनी साफियों की को फराहम करें और कम से कम इसको एक अपना घर बनाए। तो आज आपके सामने वोट हम मांग रहे हैं, चेंज के लिए वोट मांग रहे हैं। एक जगह पर खड़ा पानी जो है वहां से भी स्मेल आ जाती है, तो बार बार एक ही जगह पर जब आप वोट देना तो वहां से तो गंदगी आ रही है। आप अंदर टॉयलेट नहीं जा सकते हैं, आप अंदर जो गंदी स्मेल है कैंटीन में खाना नहीं खा सकते। यही बदलाव हम जाना चाहते हैं, आप सबका सपोर्ट। आगे अगर तो ये सारी चीजें आप जो कह रहे हैं, अगर ये सारी चीजें सही है तो फिर आप लोग आगे क्यों नहीं आ पा रहे? आप इलेक्शन तो हार जाते हैं, जो भी अपोजिशन आती है वो फिर इलेक्शन क्यों नहीं करते? तो जो भी डिलीवर्ड होता है वो तो काम पे होता है, तो फिर हर साल तो जर्नलिस्ट पैनल ही आता है। देखिए जर्नलिस्ट पैनल, अगर आपको पता भी है कि उनके पास जो फॉर्म 47 की सूरत में रात को जिस तरीके से बदलाव होता है वो भी आपके इल्म में है। हमारा फॉर्म 45 वाले हैं, आप ये समझ सकते हैं। ना हमारे पास यहाँ पे डीलर, प्रॉपर्टी डीलर है, ना हमारे पास CDA के एहलकार हैं। वे जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं, जेन्युइन तरीके से लड़ते हैं। अगर मेरे पास मेरे वोटर लिस्ट में आपको CDA का एहलकार मिल गया, आपको कोई सप्लायर मिल गया बोतलों का, तो फिर आप मुझे बता दीजिएगा, इसलिए हम हारते हैं। लेकिन हारना, मैदान में उतरना, ये बहुत बड़ी बात है। मैदान में हम खड़े, डट के खड़े मुकाबला कर रहे हैं और इंशाल्लाह बदलाव होगा। आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियां आती हैं। हमारा जो बयानिया है जब ये आम हो रहा है, मुझे यकीन है आज जो मैं जिन लोगों से मिल रहा हूँ, जिस तरीके से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, तो हमें हमेशा मैदान को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी हार और जीत और बहुत सारी चीजें आपके सामने। पिछले साल हमने बाइकआउट इसलिए किया कि जिस
जिस तरीके से हमें पुलिस से आ रहा है वीडियो आपके सामने थी, जिस तरीके से हम 47 दिए गए, तो हम इलेक्शन साफ शफाफ इलेक्शन के हामी हैं और उसी के लिए डटे खड़े हैं। और इंशाल्लाह एक न एक दिन आएगा कि बदलाव जो है ये आम होगा और जीत जो है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, और जीत सिर्फ मेरी नहीं है, पूरे जर्नलिस्ट पैनल आजाद जर्नलिस्ट की ही जीत होगी, आप सबकी जर्नलिस्ट की जीत होगी। जो जर्नलिस्ट है, जेन्युइन जर्नलिस्ट है, सीडीए के इल्जामों की हार होगी उस दिन आप देखेंगे। ये हमारे साथ मीर साफी हरमीत सिंह थे, कह रहे हैं कि जीत जो है जर्नलिस्ट की होगी। हमारी जो पार्टी है उसमें किसी किस्म के कोई सीडीए के एहलकार नहीं है और प्रॉपर्टी डीलर नहीं है। हम अगर आ जाते हैं तो हम प्लाटों की सियासत नहीं करेंगे। इनका ये साथ सैरिश कुरैशी मौजूद है जो ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है। सैरिश, आज के इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे? आज का इलेक्शन का पुरअमन इनेकाद मुकम्मल होने जा रहा है। आप देखिए थोड़ा सा ही टाइम रह गया है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में शहरों के साथ जो मदद की है, ये इस बात इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर कितना ट्रस्ट है और कितने प्रभाव तरीके से हो रहा है। इसको वही ऐसा चलता है, डांस सामने नहीं आएगा, कोई के सामने नहीं आया, आपको और की आवाजें भी सुनाई दे रही होगी। बड़ी तादाद में साथियों की शिरकत की है और आगे अपने दोस्तों की हौसला अफजाई भी कर रहे हैं और वोट कास्ट कर रहे हैं। क्या कहेंगे आज कौन जीतेगा? वैसे जर्नलिस्ट पैनल जीतेगा। मैं खुद जर्नलिस्ट पैनल से कॉन्टेस्ट कर रही हूँ। जर्नलिस्ट पैनल ने ऑन ग्राउंड वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए बहुत सारा काम किया है, बल्कि तकरीबन सारा उन्होंने ही किया है आज तक। अगर हम इसका देखें तो लोगों ने जो आगे फीडबैक किया है, जर्नलिस्ट ने अपने वोट तो उन्होंने बताया, उन्होंने जर्नलिस्ट पैनल को वोट कास्ट किया, तो होपफुली जर्नलिस्ट पैनल ही सैरिश कुरैशी का कहना था कि जर्नलिस्ट पैनल ही जीतेगा। जी, इस वक्त हमारे साथ आसिम कदीर राना साहब मौजूद हैं जो कि चेयरमैन इलेक्शन कमेटी हैं। इनसे जानते हैं कि आज के इलेक्शन के हवाले से ये क्या कहते हैं। सर, क्या कहेंगे आज के इलेक्शन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज बड़ा पुरअमन इलेक्शन रहा। पूरा दिन रावलपिंडी इस्लामाबाद से जितने भी न्यूज चैनल्स अखबारात से जो मुंसलिक सहाफ़ी हैं उन्होंने अपना वोट इस्तेमाल किया और सुबह से ही ऑलमोस्ट जब 9:30 बजे पोलिंग शुरू हुई और अभी तक ऑलमोस्ट तकरीबन 1 घंटा रह गया पोलिंग खत्म होने में। 7 बजे का टाइम है। टोटल 3000 से ज्यादा हमारे वोटर्स हैं। तो आप ये देख लीजिए कि काफी जो है बड़ी तादाद में लोगों ने पोलिंग में हिस्सा लिया और लोग ले रहे हैं। अभी तक तमाम जो रूम्स है जहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पे सब लोग आ रहे हैं। जर्नलिस्ट अपनी ड्यूटियां भी साथ साथ अदा कर रहे हैं और साथ साथ अपना हक राय दही या अपना वोट जो है नेशनल प्रेस क्लब की अगले साल की क़यादत के हवाले से वो अपनी जो है वो वोट दे रहे हैं। और 7 बजे के बाद इंशाल्लाह हम इसकी काउंटिंग करेंगे और रात किसी टाइम एग्जीक्यूटिव बॉडी का रिजल्ट दे देंगे। सर, एक चीज देखने में आती है, रूटीन में ही है, बल्कि ये तो एक मामूल बन चुका है कि इलेक्शन होने के बाद एक चीज सामने आ जाती है, धांधली हुई है। क्या कहेंगे? ये अभी तक तो कोई ऐसी कंप्लेन नहीं आई धांधली के हवाले से, तो ना ही किसी ने कोई शिकायत की है। बिल्कुल प्रॉपर जो है सब लोग आ रहे हैं और अपना वोट पोल कर रहे हैं। तो चंद लोग ऐसे इल्जाम भी लगाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है अभी तक कोई ऐसी हमें कंप्लेन एज अ चेयरमैन इलेक्शन कमेटी कोई मसूल नहीं है। आपने कोई ऐसी चीज छोड़ी ही नहीं जिससे धांधली होने के कुछ खदशात हो? देखिए, हमने बड़े अच्छे तरीके से तमाम ग्रुप्स के लोग इलेक्शन कमेटी में शामिल हैं और हमने बड़े अच्छे तरीके से सबकी कंसल्टेंट से जो है वो तमाम लोगों की मशावरत से हमने जो है वो काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से तमाम ग्रुप्स चाह रहे हैं उसी तरीके से हमने इलेक्शन के तमाम इंतजाम किए हैं ताकि कोई भी ग्रुप है उसकी कोई रिजर्वेशन ना हो और तमाम काम जो है वो बिल्कुल मेरिट पे हो और बिल्कुल भरपूर शफाफ तरीके से ये इंतखाबात हो। आज के इलेक्शन का रिजल्ट किस टाइम तक आ जाएगा, क्या कहेंगे? ये अंदाजा नहीं है अभी, क्योंकि 7 बजे तक तो पोलिंग टाइम है और 8 साढ़े 8 बजे करीब उम्मीद है इंशाल्लाह हम काउंटिंग शुरू करेंगे। तो रात सारी काउंटिंग होगी, सुबह के टाइम किसी टाइम तक मतलब तो रिजल्ट आ रहे हैं। हमारे साथ आसिम कदीर राना साहब मौजूद थे। इनका कहना है कि इलेक्शन पुरअमन तरीके से हो रहे हैं और इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो 7 बजे खत्म होगा, 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी और कल सुबह इलेक्शन की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी और इलेक्शन बड़े ही अमन तरीके से हो रहे हैं। जी।